اور اب ہم بات کریں گے ایک ایسے رشتے کی جس سے محبت کی داستان ایسی بیاں ہوتی ہے کہ اس کے لیے لفظ نہیں مل پاتے ہیں۔ ماں باپ کی اپنے بچوں سے جو محبت ہوتی ہے وہ بے پناہ محبت ہے، یعنی ماں باپ کچھ بھی کر جاتے ہیں بچوں کو اچھا فیوچر دینے کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، خواہشات پوری کرنے کے لیے، لیکن ایک بڑا زبردست محبت کا رشتہ ہوتا ہے باپ اور بیٹی کے درمیان۔ That's very true مہک، میں جب باہر جا رہا ہوتا ہوں تو میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے، میری بیٹی کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ میں نے بابا کے ساتھ جانا، ہم اکٹھے چلے جاتے ہیں کچھ جگہوں پر۔ لیکن اگر میں سوچ لوں کہ میں نے مارکیٹ یا کسی اور سپاٹ سے تھوڑا سا آگے جانا ہے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں نے شہر سے باہر جانا ہے اس کو لے کر۔ میری وائف مجھے وہیں سے کہے گی نو نہیں لے کر جانا۔ لیکن آپ کے پاس میرا خیال ہے جو خبر ہے جس کے ویژولز ہم دکھا بھی رہے ہیں کہ یہ باپ اور بیٹی ماشاءاللہ ویری لونگ، اور یہ کراچی سے کہاں پہنچے بھلا؟ یہ کراچی سے پہنچے تھے چائنا بارڈر پر، اور بائک کے تھرو پہنچے تھے۔ قاضی فاروقی اور ان کی بیٹی جو ہے غزل، موٹر سائیکل پہ انہوں نے یہ سفر طے کیا تھا، اور مطلب کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ میں اپنے ابا کے ساتھ جب کبھی موٹر سائیکل پہ بیٹھی تو میرا تو دوپٹہ آ جاتا تھا، مجھے کہتا ہے کہ بیٹا اگلی دفعہ تو تمہیں میں نے بٹھانا ہی نہیں ہے۔ لیکن ان کا یہ سفر کیسا رہا، کیا کیا مشکلات انہیں پیش آئیں، کتنا انہوں نے انجوائے کیا، سفر کتنا کٹھن رہا، آئیڈیا ان کے پاس کیسے آیا، یہ سب کچھ ہم انہی سے جانیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ وہ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ قاضی فاروقی اور غزل فاروقی ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں۔ قاضی صاحب بہت شکریہ، ویلکم کہیں گے، گڈ مارننگ کہیں گے، اور جو آپ کا جوش تھا، جو آپ کا جذبہ تھا، اس کو ہم سلام بھی کہیں گے۔ یہ آئیڈیا آیا کیسے، کتنے دن تک آپ موٹر سائیکل پہ سفر کرتے رہے، سفر کتنا لمبا تھا، کیا کیا مشکلات تھی، سب کچھ بتائے گا۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا کہ ہم اپنے خیالات لوگوں تک پہنچا سکیں۔ یہ ہمارا سفر 2200 کلومیٹر کا تھا، کراچی سے خنجراب پاس تک کا، اور اس کے بعد جو ہم 3-4 ویلیز ہم نے کور کی تو آلموسٹ آنا جانا 5000 کلومیٹرز بنتا ہے۔ اوکے، تو ہم یہاں سے نکلے تھے 28 اگست، اور ہماری بیٹی کی چھٹیاں ذرا کم تھیں، ورنہ تو شاید ہم 2-3 مہینے گھومتے ہی رہتے۔ یا میں پوچھتا آپ سے کہ پھر اور کدھر نکلنا تھا، اس بارڈر سے آگے کہاں نکلنا تھا؟ اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ آف دا روڈ اس کی جو خوبصورتی اگر دیکھنا چاہیں، جو ٹریکنگ وغیرہ ہو، تو سالوں لگ جائیں، پاکستان کو نہیں کور کر سکتے۔ یہ تو ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو روڈ کے اوپر سب عام آدمی کی بھی پہنچ میں ہیں، لیکن اصل مقامات تو وہ ہیں جو آپ 4 دن کا ٹریک یا 3 دن کا ٹریک کر کے جاتے ہیں۔ تو بہرحال وہ تو بہت لمبی کہانی ہو جائے گی۔ لیکن یہ بتائیں، چھوٹا سا سوال، ضد بیٹی کی تھی یا خواہش آپ کی تھی؟ دیکھا جائے تو بیٹی کی تو ضد تھی لیکن میری خواہش بھی تھی، کیونکہ لاسٹ ایئر میرا بیٹا ہو کر آیا تھا میرے ساتھ، تو میں نے کہا بھائی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بیٹا ہو اور پھر بیٹی کا نہ ہو۔ یا یہ تو نہیں ہوا کہ غزل نے کہا ہو کہ کیوں بابا بھائی کو تو لے گئے، مجھے کیوں لے کر نہیں گئے؟ نہیں، یہ بات نہیں تھی، یہ تو یہ چاہتی تھی کہ میں خود بائک پر، اپنی بائک پہ جاؤں۔ بائک آتی ہے بالکل وہاں، لیکن میں نے ان کو وہاں میں والد بن گیا، تو میں نے کہا کہ بھائی ابھی تو شادی بیاہ بھی ہونا ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ احتیاط کی جائے اس میں۔ تو لیکن یہ 4 سال اپنی یونیورسٹی بائک پر ہی جاتی رہی۔ اچھا قاضی صاحب، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بائک چلانی آتی ہے غزل کو، تو بائک مطلب کس نے چلائی؟ غزل نے چلائی یا آپ نے چلائی، یہ مل بانٹ کے چلائی؟ سر نے ہی چلائی، بابا نہیں چلائی، کیونکہ وہاں کے جو علاقے ہیں نا تو وہ کافی، اور جن علاقوں پہ ہم گئے جو کہ جیپ ٹریک ہے، تو وہاں ہمیں سب یہی کہتے ہیں کہ یا تو وہ انکل جو ہیں وہ پاگل ہو گئے یا کوئی مسئلہ ہے ان کے ساتھ، اور اپنی بیٹی کے ساتھ ان راستوں پہ اگر نلچر کا آپ ٹریک دیکھیں بالکل تو وہ تو دشوار گزار روڈ بن رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، لوور نلچر اور اپر نلچر، لیکن بائک، لیکن مزہ بھی تو آ رہا ہے نا۔ یہ میں چاہتا ہوں مہک ہم غزل سے بھی ذرا پوچھتے ہیں۔ غزل مجھے آپ بتائیں کہ آپ کی تو خواہش تھی کہ آپ جانا چاہ رہی ہیں، ضد بھی تھی کہ جانا چاہ رہی ہیں، رستے میں ضد کی تھی کہ بابا ذرا 1-8 کلومیٹر میں بھی بائک چلا لوں؟ بالکل کوشش کی تھی میں نے، کیونکہ ایک شوق تو ہوتا ہے جو بائک چلاتا ہے اور ان کے سامنے اگر کوئی دوسرا بائک چلا رہا ہو تو ہوتا ہے کہ ٹرائی بابا مجھے بھی کرنے دیں، لیکن پھر یہی تھا کیونکہ ہمارے پاس ویٹ تھا کافی، ہمارے پاس سامان بھی تھا، پھر رستہ بھی ایسا تھا کہ ایک جگہ پہاڑ ہے تو دوسری جگہ دریا بہہ رہا ہے، تو مطلب اٹس ویری ٹرکی وہاں پر چلانا نا بائک، تو اس وجہ سے اب بنے نہیں۔ میں آپ سے یوں پوچھتا ہوں غزل، کراچی سے آپ کا سفر کا آغاز ہوا ہے، آپ مجھے نا پروونس وائز بتائیں، سندھ کا سفر کیسا، پھر پنجاب کا سفر کیسا، اور پھر کے پی کا سفر کیسا، اور پھر گلگت بلتستان کا سفر کیسا، کہاں پر سب سے زیادہ مزہ آیا، کہاں پہ مشکلات زیادہ آئیں، کہاں کا کلچر آپ کو اٹریکٹ کر رہا تھا؟ اچھا، سندھ میں تو ہم لوگ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم خود بھی سندھ میں ہی آتے ہیں، تو ہمیں اتنا کچھ مطلب اچھا تو تھا، آف کورس پورا پاکستان ہی خوبصورت ہے، تو اچھا ہم لوگ رکتے ہوئے گئے، ہمیں کافی مطلب اچھا رسپانس بھی ملا، کافی لوگ بھی ملے ہمیں جو سندھ میں ہی، بالکل سندھ میں ہی، جن کو آپ نے بتایا کہ ہماری منزل سندھ کا کوئی شہر نہیں گلگت ہے بلکہ بارڈر ہے، کیونکہ رکتے ہوئے جا رہے تھے، کیونکہ ایوری 60 to 70 کلومیٹرز ہمیں رکنا پڑتا تھا، بائک کو بھی تھوڑا سا آرام دینا پڑتا تھا،
तो सिंध में हमारा सही रहा, अच्छा था। एंड देन पंजाब हमें वहाँ पर काफ़ी बारिशें वगैरह मिली। ओके, और जब बारिश हुई तो बारिश में सफ़र जारी रहा कि ब्रेक लगती गई? नहीं, सफ़र जारी रहा। बारिश में जारी रहा? ये आपकी ख्वाहिश थी या सर आपने कहा कि नहीं सफ़र जारी रहेगा? दोनों की ख्वाहिश थी कि बारिश है, जो मर्जी है, सफ़र जारी रहेगा। टाइम ज़ाया नहीं करना था, छुट्टियां भी कम थी ना, आपने बताया। देखा, ये असल मसला ये था। 10 घंटे मुसलसल बारिश में सफ़र किया हमने। और फिर पंजाब से केपी, अब बताएं केपी। तो वहाँ तो खैर खूबसूरती शुरू होती है, आपको पता है। तो वहाँ पर लोग भी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल हैं और काफ़ी हेल्पफुल थे। क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही थी, तो मेरे लिए इट वाज समथिंग डिफरेंट, न्यू। तो वो मुझे रास्ते वगैरह नहीं पता थे, तो कहीं से भी किसी से रुक के अगर पूछ लिया तो बड़े अच्छे से मतलब पेश आते थे। और गूगल मैप वाली बाजी को फॉलो नहीं किया? गूगल मैप वाली बाजी कभी कभी हमें गलत ले जाती थी। वो आपको सबको गलत लेके जाती, वो हमें भी कभी कभी गलत लेके जाती। खेत में ले जाके खड़ा कर दिया। ये हुआ अभी? जी, इसी ट्रिप में हुआ? इसी ट्रिप पे हुआ। फिर आपने सोचा इन बाजी की बात नहीं माननी? फिर हमने वो पुलिस की मदद ली और उन्होंने बड़े बेहतर अंदाज में और बहुत ही अच्छे अंदाज में हमें समझाया, मैप बना के दिया बाज़ाब्ता कि आप ये केपी की बात आप कर रहे हैं? नहीं, मैं पंजाब की बात। केपी में तो ऑल क्लियर। फिर केपी में मुझे आप जरा बताएं, नारान, कागान और उसके बाद बाबू सर टॉप के बाद का सफर? बाबू सर टॉप के बाद तो फिर हम लोग बटाकुंडी और जलखड़ इज वेरी ब्यूटीफुल। बाबू सर टॉप से पहले? बाबू सर टॉप से पहले हो। तो खैर हम लोग काफ़ी मतलब आगे तक गए और मुझे बाबू सर टॉप पे हमें सर्दी काफ़ी मिली, लेकिन स्नोफॉल नहीं मिली, जिसका मुझे बड़ा वो था कि शौक था कि देखूं। और उससे आगे हम लोग फिर हुंजा, हुंजा था, फिर हुंजा के आगे हम लोग हुपर वैली गए, एंड देन अताबाद लेक, हुसैनी ब्रिज, पसूगोन्स, एंड फिर आगे खंजराब। अच्छा, वापस आने का दिल कर रहा था कि अच्छा बिल्कुल भी नहीं, ये सबके साथ होता है मुझे लगता है वापस। लेकिन यहाँ घर से कॉल्स नहीं जा रही थी मदर की स्पेशली? मम्मा इज वेरी स्ट्रॉन्ग, शी इज वेरी सपोर्टिव। इनफैक्ट शी वाज द वन हु सेड कि बेटा भाई गया तो व्हाई नॉट यू। दैट्स वेरी गुड। ऐसी स्ट्रॉन्ग मदद होनी चाहिए, वरना मां कहते नहीं कार च बैठ जा। नहीं, वो माशाल्लाह इतनी मजबूत हैं कि अब अगले साल के लिए उन्होंने डिमांड डाल दी है। अब वो जाएंगी? जी जी जी, बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, वो और आप बाइक पे जाएंगे? बाइक पे जाएंगे। सुहाना मौसम, जबरदस्त सफर, और फिर बुढ़ापे में बचपना। नहीं, बुढ़ापे में जवानी। नहीं, यू आर यंग ज़ाहिर है, ये यंग ही लोगों का काम है, इतनी ट्रैवलिंग नहीं होती सर, नहीं होती। सर मुझे बताएं, रास्ते में कभी ऐसा हुआ या किसी ने ऐसा कोई कमेंट किया कि बेटी को लेकर निकल आए आप, जवान बेटी के साथ बाइक पे निकल आए, ऐसा कोई कमेंट, ऐसा कोई मामला हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं, किसी सिंगल पर्सन ने भी मुझे ऐसी बात नहीं की लगा करम में। लेकिन वो खुशी होते थे बहुत। ओके, कोई ऐसा कमेंट जिससे सुन के आपको बड़ी एनर्जी मिली? हाँ, क्योंकि मुझे जो ना, जैसे बाबा कहते हैं कि ये मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है, तो ये सुन के ना तो लोग बहुत वो होते थे, इम्प्रेस होते थे, कहने लगे कि हमारी बेटी होगी ना तो हम उसको भी ऐसे ही बनाएंगे। तो मुझे ये खुशी होती थी कि मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसा ब्रॉटअप दिया कि लोग ये उसको मतलब एक रोल मॉडल के तहत ले रहे हैं उसको। अच्छा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा अभी मौजूदा मुआशरा, जैसे आपने कहा कि अच्छा हमें ऐसा कोई कमेंट नहीं मिला कि भाई बेटी को लेके आप जा रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अगर पीछे चले जाएं तो हम देखते हैं कि बाप और बेटी का रिश्ता मोहब्बत वाला तो रिश्ता है ही, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है जो कि शायद हमारे लिए अब नाकाबिले बर्दाश्त हैं, या ऐसी चीज़ें हम जैसे कराची में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, हम ऐसे शहरों में भी ये चीज़ें देख लेते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि यार बाप अपनी बेटी पे जुल्म या फिर बेटी को ऐसे अल्फाज से नवाज रहे हैं। या यूँ कहना अगर मैं है कि फॉर इंस्टेंस इवन स्टिल इस सोसाइटी में हम ये देखते हैं कि कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में बाप खुद कह देता है नहीं ये बेटी है तो ये नहीं करेगी, ये बेटा है तो ये करेगा। मैं चाहता हूँ सर पहले इससे मुतालिक आप मैसेज दें, कि ऑब्जर्वेशन आपकी भी होगी। देखिए जी, मैं तमाम जो वालिदैन हैं, चाहे वो माँ हैं, चाहे वो बाप हैं, या चचा हैं या ताया हैं, उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी बेटी पर एतमाद करना सीखें, अपने ऊपर एतमाद रखें और बाकी चीज़ें अल्लाह ताला पे छोड़ दें। और बाकी रही ये बात कि जी वो बेटी है तो बेटी होना तो कोई कसूर नहीं है, अल्लाह ताला ने उसको बेटी बनाया, अल्लाह की रहमत है। और वो जब तक बाप के घर में होती है बेटी, उसको तो मैं कहता हूँ कि हर पल उसका याशी में गुजरना चाहिए, की तरह रखना चाहिए। बिल्कुल, बाद में उसकी ज़िंदगी का हमसफ़र कैसा मिले वो तो फिर अल्लाह के नसीब है, और यही हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह बेटियों के नसीब अच्छे करें। बिल्कुल, तो ये उनको थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए, थोड़ा अल्लाह पे ट्रस्ट करना चाहिए। और जो लोग इस चीज़ की मुखालिफत करते हैं कि जी बेटियों को आप ज़्यादा एडवांटेजेस ना दें और वो ऐसा हो जाएंगी और बिगड़ जाएंगी, और ये सब फजूल बातें हैं, मैं इसको बिल्कुल अग्री नहीं करता। वैसे बिगड़ने से आपकी कभी वाइफ ने कहा कि भाई गज़ल को बिगाड़ने में तो आपका हाथ है?
हाँ, वो प्यार में कहती हैं गज़ल को बिगाड़ने में आपका हाथ है, बेटे को बिगाड़ने में। मैंने कहा हमने तो आपको भी बिगाड़ दिया, तब भी कोई हाल नहीं। और गज़ल, आपका इस बारे में क्या कहना है? मेरा इस बारे में यही कहना है कि हम जो है ना, हमारे माशरे में जिस तरीके से लड़कियों को लेके एक होता है कि हर चीज़ से रोक दिया जाए, क्योंकि मुझे हमेशा से वैसे ही रखा है जैसे एक बेटे को रखा है। तो मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ लड़कियों से, तो मुझे इस चीज़ पे थोड़ा सा वो होता है कि माँ बाप को चाहिए कि वो अपनी बेटियों को समझें, उनका एक ट्रस्ट फैक्टर होता है, वो गेन करें, अब वो एक बना के रखें और उनको इजाज़त दें, उनको भी मतलब हमें भी मौका दें कि हम आगे बढ़ें, कुछ करें। और मेरे ख्याल से आजकल कामयाब बेटियां जो हैं उनके पीछे यही चीज़ है कि हम कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, लेकिन कामयाब बेटियों के पीछे एक ऐसे बाप का हाथ है जो कि उन्हें कॉन्फिडेंस देता है। मुझे ये लगता है कि मैं आज जहाँ पर हूँ, मेरे वालिद साहब इसके पीछे हैं, उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ। और इसी तरह मुझे लगता है गज़ल को भी एक ऐसे ही बाप ने सपोर्ट किया, एक ऐसे ही बाप ने कॉन्फिडेंस दिया है कि आज गज़ल यहाँ पर बैठी है। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और हमारे जो कुछ होते हैं, आपके रिश्तेदार भी होते हैं, मोहल्लेदार भी होते हैं, जो एक माशरा है, तो मैं जो हूँ ना, उनको इजाज़त नहीं देता इस बात की कि आप मेरे ख़ुदे में कोई कील ठोक सकें। तो मैं उनसे कहता हूँ कि जी देखिए, ये दरवाज़ा आपके लिए खुला है, अगर आप हमसे हमारी बात करें तो आपको दूसरी चीज़ों में इंटरफेयर करने का कोई अख्तियार हम आपको नहीं देंगे। थैंक यू वेरी मच। वरना चाय पीजिए और तशरीफ़ ले जाइए। तो उसके बाद ये हुआ कि लोगों ने फिर सोचा कि नहीं भाई, ये डिफरेंट लोग हैं, हमारी दाल यहाँ नहीं गली। मिले लोग इसके बाद आपसे? हाँ, उन्होंने जब रियलाइज़ किया कि भाई ये तो एक बिल्कुल ही नेचुरल किस्म का बंदा है, ये चेंज नहीं हो सकता, इसका लम्बा साजी नहीं है, और ये ऊपर कोई दूसरा रूप इन्होंने नहीं धारा हुआ, अगर इन्हें घिसेंगे भी तो अंदर से वही निकलेंगे। तो जो हमारी तबीयत के थे वो मिलते हैं, जो नहीं थे हमने उनको। अच्छा, जैसे फैमिली की आप बात करें तो ये देखते हुए कि गज़ल अपने अब्बा के साथ गई बाइक पे, तो क्या ऐसी कोई और मिसाल भी अब आपकी फैमिली में बनने जा रही है, जैसे चाचा या ताया, मामा, फूफी, खाला, ऐसी कोई एक एग्जांपल अब मजीद आपको लगता है सेट होगी गज़ल को देखते हुए, आपको देखते हुए? मुझे दूर दूर तक गज़ल नहीं आती, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं ये कहूँ नहीं कि सब मेरी तरह बड़े ब्रॉड माइंडेड हैं और सारे वक्त लगेगा, थ्रिल वाले, हाँ वक्त लगेगा, बट एक एग्जांपल आपने सेट की है। एग्जैक्टली सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, का माहौल नहीं देना चाहिए। एग्जैक्टली सर, आपने ज़ाहिर है बेटी को बहुत अच्छा माहौल दिया माशाल्लाह। मुझे थोड़ा सा प्लीज़ बताइएगा सर, अगर मैं ये सवाल करूं कि अपनी बेटी को देखते हुए, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट माशाल्लाह, वो बाइक पर यूनिवर्सिटी जाती रही, आप उन्हें साथ लेकर गए, बेटी की परवरिश ज़ाहिर है वालिदैन जब करते हैं बहुत सोचते हैं चीज़ों को देखकर, माशरे को देखकर, और जब बेटी कॉन्फिडेंटली ग्रूम करती है तो फिर कुछ पॉइंटर्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे वक्त, कुछ ऐसा लम्हात होते हैं जब आपको लगता है कि अच्छा, ये जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी ना, मेरी इमोशनल इन्वेस्टमेंट, जो मैंने इसे ग्रूमिंग में किरदार अदा किया, अच्छा वो नज़र आ रहा है अब। तो ऐसा मोमेंट या ऐसा कोई इनका कैरेक्टर या ऐसी कोई चीज़, जेस्चर जो आपको लगता हो कि अच्छा नहीं, वाकई ये मैंने किया था ना, वाकई अब मुझे इसका फल मिल रहा है? देखिए, जब आप आम लगाते हैं ना तो उससे आम ही आते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप अमरूद लगाएं उसमें से तरबूज निकल आए। तो जो मैंने इनको सिखाया, दिल की यानी कि साफ़ होना बड़ा ज़रूरी है, और एक इनको मैसेज दिया, मैंने कहा मोहब्बत करो दुनिया से, जानवरों से, जो भी चीज़ है उससे सिर्फ मोहब्बत का पैगाम आप दें। अच्छा बुरा इनको समझा दिया कि बेटे ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, लेकिन अगर उसके बावजूद आप अपने एतमाद और अपने कॉन्फिडेंस पे कोई चीज़ अपनाना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, आई एम गोइंग टू सपोर्ट यू। अच्छा गज़ल, जो हमें लड़कियां, बच्चियां, बेटियां हमें देख रही हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए यही मैसेज है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, और वो चीज़ें जो आप लोग सोचते हैं कि आपको करनी है, मैं कहती हूँ माँ बाप की जो एक सपोर्ट होती है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अपने माँ बाप को एतमाद में रखते हुए हर काम करें। तो जैसे मुझे कुछ भी करना होता है तो मैं अपने अम्मी अब्बू से ही बोलती हूँ। मैं कोई दोस्त इतने अच्छे नहीं होंगे जितने मेरे माँ बाप मेरे अच्छे दोस्त हैं। माँ बाप से बेहतर तो कोई दोस्त बिल्कुल कोई दोस्त होता ही नहीं है। तो बस यही मैसेज है कि आप लोग लड़कियाँ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को वीक समझें। हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और कोई कंपैरिजन नहीं है लड़के लड़कियों का, लेकिन ये कि लड़कियां इन इटसेल्फ, हम लोग खुद बहुत अच्छी एक ज़ात है, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, और बहुत कुछ हमारी दुनिया में हो रहा है जो लड़कियां कर रही हैं। तो मतलब वो चीज़ करें जो आपको लगता है कि आपके इंटरेस्ट है उसमें, तो आप उसमें ज़रूर जाएं। और कैसाब, जो वालिद हमें देख रहे हैं, जो बाप इस वक्त नया दिन इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहेंगे कि उनको अपनी बेटी को किस तरह से हिम्मत देनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं उन वालिदैन को ये कहूँगा कि अपने जहन को वसी करें, उसको खोलें। उसमें कई जगह बड़ी ग्रहण लगी होती हैं, उनको खोल दें आप। जब आप खोलेंगे तो आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। और अपनी बेटी के ऊपर बेइंतहा ट्रस्ट करें, बेटी हो या बेटा हो, आप उन पे एतमाद की रिश्ता कायम रखें, अल्लाह ताला से लो लगा के रखें, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। ये मेरा ईमान है। क्या बात है गज़ल। लास्टली योर मैसेज
for your father. I know he's sitting right here, but I just want to know कि इतने कॉन्फिडेंट गज़ल के पीछे कॉन्फिडेंट वालिद हैं, उनकी सपोर्ट है, कंटिन्यूस सपोर्ट है ज़ाहिर पूरी फैमिली की, कुछ कहना चाहती हैं अपने वालिद को यहाँ बैठकर? मैं अपने वालिद को यही बोलूँगी कि मैं आपको सल्यूट करती हूँ पहले तो, और कि मैं इनको बहुत प्यार करती हूँ, एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना आज़ादी दी और एक मुझे हर चीज़ सिखाई और मुझे अपने साथ हर जगह रखा एक बेटे की तरह, और मुझे मतलब वैसे ही ब्रॉटअप दिया जैसे यासीन को दिया, तो थैंक यू वेरी मच। अभी ये मुझे रुलाने के चक्कर में ही इज़ वेरी इमोशनल। नहीं, रोना बिल्कुल नहीं है, लेकिन यह है कि ये बहुत हसीन रिश्ता है, लोग इसको समझने की कोशिश करें। और ये है कि मेरी अहलिया की मैं ज़रूर तारीफ़ करूँगा कि वो हर लम्हा, हर मिनट, हर घंटा वो मेरे साथ थी, बिल्कुल जैसे दीवार के साथ दीवार लगी होती है। तो उन्होंने हर जगह मुझे सपोर्ट किया, और वो ख़ुद बहुत दिलेर खातून है, यानी मैं अपने इमोशंस काबू में नहीं रखता हूँ, लेकिन शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इसीलिए तो बेटी इतनी स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल, पूरी फैमिली आपकी बड़ी मोटिवेटेड है माशाल्लाह। आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके, हमें पहले से मालूम होता कि आंटी भी इतने सपोर्टिव हैं, उनको भी यहीं लाके बिठाते हैं, उनसे भी बात करते हैं। नेक्स्ट ईयर मौका देंगे आपको। लेकिन जब अंकल और आंटी जाएंगे ना, हम इन्हें बुलाएंगे, साथ में चले महक, टीम नया दिन कौन करेगा, हम कबाब में हड्डी